Hello everybody. There's Odeva here. Can somebody please help Sir, me test connection? Is my audio clear? Can somebody yes, speak? sir. Yes, sir. Voice is clear. Okay, very fine. Oh, Vasu, you are here. Yes, sir. I thought you were going to be late. No, sir. I have get rid of that problem. Okay, nice. Good to know. Okay, well, there's today most of it would be theory. थोड़ा सा रफली स्टैट्स की बात करूंगा, हालांकि वो डिटेल में आपका कवर होने ही वाला है. But roughly theory before you go into your SQL module. So far, you have been into some nitty-gritties with Excel, summarizing data, creating visualization, making the data presentable within Excel. We also learned about some terminologies in data science. We saw the landscape of various data science domains like analytics, machine learning, what is AI, what is business. We also went into seeing a typical project life cycle that it all begins with data collection, and then there is ETL process, so that now this data is in a standard form. And when there is a business problem, well, the analyst prepares the data according to the business problem, and then further data mining and visualization and everything goes on. So you were Yeah, telling about the types of data analytics, and you just text told us about the only three types. And what about the rest, sir? three types like Sir, you were teaching about in previous class. You were teaching about data analytics, type of data analytics. So you taught us uh, only three types: descriptive, diagnostic, predictive. And what about the rest? Cognitive, and there's about also. that descriptive, diagnostic, predictive that we have explained in detail. Well, prescriptive. Next comes is prescriptive, which is about prescription. If somebody is asking me Hmm. what do I prescribe after all these descriptive, diagnostic, and predictive analytics. And So now, cognitive also. Cognitive, there was also cognitive. coming to that. So once I have diagnosed and once I am able to predict what is going to happen and all that, when I'm into all Hmm. these kind of things, maybe I'll share the screen. This was we were talking Yes, sir. about now. Yes, sir. हाँ, तो मैं शायद मैंने बोला हो, I don't remember exactly, but when it comes to prescriptive अपने आप में कोई स्टेज नहीं है. Hmm. It is something which is obvious. यार अगर मैं ये देख चुका हूँ ये डेटा में क्या क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और आगे होता हुआ क्या लग रहा है, अगला क्वेश्चन यही ना होगा कि if something is undesirable how to avoid that, if something is desirable how to enhance that. Okay. So that is all about prescription. तो अपने आप में ये कोई एनालिटिक्स नहीं है, it is combination of all other three. Okay. Actions according to the circumstances. Yeah, it is finally not analytics, it is basically suggestions and actions combination. Okay, sir. Fine, sir. Last but not the least, that is cognitive analytics, which is domain of AI. Remember, we talked about AI Yes, sir. when human intervention is not required, like Google Assistant, like Alexa, like Tesla cars. सुना है आप लोगों ने? Tesla is Yes, sir. Yes, sir. है ना? Tesla is trying Autopilot, to, yes, autopilot, or Tesla driving. Sorry. Tesla has been successful to an extent to bring in driverless cars,
So depending upon the live camera feed, and it is doing sound recognition, it is doing computer vision and all, and depending upon that, that car is supposed to take decision by itself. So that is something which goes into domain of cognitive analytics. Very minimal human intervention. थैंक यू सर. ओके फाइन. अभी देखेंगे हम ये डिटेल में, आज ये भी देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी अ यूज केस अराउंड दिस. But okay, before that, a nitty-gritty of statistics जो आप लोगों ने थोड़ा सा हमने कल एक्सेल में देखा था. एक्सेल में we came to know that there can be different kinds of statistical tests. We saw that t test, v test, Fourier analysis, and ANOVA, and this and that, n number of tests. So it was just to make you aware that these kind of things are available in Excel. ये सब कुछ एक्सेल में हो सकता है. थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्ञान. हाँ जी, देख ले जरा कितने पानी में आप लोग. अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस स्टेज को थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो. यस, अबाउट स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड थोड़ा सा स्टैट्स, थोड़ा सा ज्योमेट्री. ओके. व्हेन इट कम्स टू योर डोमेन, बहुत सारे आप लोगों के उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. Statistics, and within statistics there are two kinds broadly: descriptive statistics and other is inferential. We will come to probability theory also, in which we will be very much interested in conditional probability cases. There will be some extent of geometry. So geometry will come down to various aspects. 2D. हाँ जी, और क्या होता है? 3D. 3D. और क्या होता है? और क्या होता है? हाँ, नो आइडिया. हाँ जी, 1D. 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 And dimensional geometry, imaginary geometry. देखेंगे बात करेंगे इनकी बंद. Anybody here who didn't have 11th maths and 11th 12th? 10th तक तो सबके पास ही था, लेकिन ऐसा कोई जिसके पास 11th 12th में नहीं था? Yes sir. I am the one. In the chat box, I need head count. Himanshu and Vishal and Vasu. Anybody else? नया मैं पूछ रहा था जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं रहा है, मतलब 10th के बाद मैथ्स रहा ही नहीं है, ऐसे कौन लोग?
10th तक तो मजबूरी थी, जिनके पास नहीं था 10th के बाद कभी भी नहीं रहा, 11th में 12th में ग्रेजुएशन में कभी मैथ से वास्ता नहीं पड़ा है, 11 12 में स्टार्ट सर। उनको पूछ लो। मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूँ, एक दो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको इससे कभी वास्ता नहीं पड़ा है? जस्ट गिव मी अ मी, I'll get to know what has to be done. I'm reciting a few names. If you have never heard of that or you have no idea about it, you just have to type me. Differential calculus. Mhm. Normal distribution. Mhm. General equation of line. General equation of a straight line. Okay. Probability theory. Or maybe more specifically, if I say addition and multiplication rule of probability. Addition and multiplication rule of probability. Okay. थोड़ा थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ. Simple thing. Just to get everybody on the same platform. Okay, very well. Yeah, hey, Amangana. Amangana, you just joined in? Okay. Okay, no problem. देखते हैं एक एक करके बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस चीज को बोल रहे हैं हम? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सी, when there is data is well, data can be a few rows and few columns, and it may go up to some few thousand rows and few thousand columns, or maybe more. So descriptive statistics is something I need some entities to represent data in a very crisp form. I need some single point representations of data. Just say, Sir, for example, sir, could you please repeat? I could not get that. I was saying, Keshav,
Descriptive statistics, what it is all about, it is about describing the data. I have a data at hand. How do I describe that? For example, if somebody asks me that this is batch PGA 14, and what is the height of your students, Chauhan? If somebody asks me that, you are taking a batch PGA 14, and maybe they are telling me that what is the height of your students. तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं ये बताना शुरू करूँ उत्कर्ष की इतनी है, अली की इतनी है, फिर हिमांशु की इतनी, रेम्या की इतनी, और यही चलेगा क्या शाम तक? और आप लोग तो चलो 12-15 स्टूडेंट्स हैं. मीन निकालो सर. What if there are 100 people, or what if there are 1000 people? हाँ जी, getting my idea? So I need to describe data something by something with very crisp and crunch entity. So there are two parts of this. One is, we call it central tendency or measures of central tendency. I want to define the central tendency of this data by some measure. So there are a few measures of central tendency. One of them is mean. What is mean? Mean is here Sum of occurrence divided by arithmetic average. Suppose I have a set of values like this. So these are a set of values. What will be the mean of these set of values? Sum of all the values. Yes or no? ये तो होता है. Yes. Divided by number of values. How many values are there? तो कितना हो गया ये? हाँ, अरे 4 हो गया. 4 हो गया सर. Straight forward. So it is as simple as that. So one of the central tendencies, या measures of central tendency, is mean. Mean is arithmetic average. Total of the values divided by number of the values. MCQ stuff for you people. Mean of a set of values is essentially a value in that set of values. True or false? Sorry sir, can you repeat? मैं कह रहा हूँ mean of a set of values is essentially a value in that set of values. देखो यहाँ पे mean 4 आ रहा है, और 4 यहाँ पर इन set of values में भी एक value 4 भी है. तो is it true? हाँ, समझ आ रहा है. Coincidentally, it is happening here. It is not always true. Yes or no? Everybody getting this? सबको समझ आती है बात? अगर मैं जरा सा चेंज कर दूं इस सेट ऑफ वैल्यूज को, हाँ जी, कितना हो गया अब मीन? व्हाट इज द मीन नाउ? जो भी है, इट इज नॉट अ सेट ऑफ वैल्यूज एनीमोर. It is 4.8. Yeah, it is not even integer now. So yes, it is not necessary. ठीक बात है. Okay. Another measure of central tendency can be, हाँ जी, और क्या हो सकता है? कुछ ध्यान आया हो थोड़ा बहुत तो? Mode median. Median. Median Yes. mode. Median. Suppose I tell you a set of values.
हाँ जी, तो मीडियन क्या होता है इन अ सेट ऑफ वैल्यूज? मीडियन इज Middle. मिडिल वैल्यू। सही बात है। Yes. Median of a set of values is the middle value. It is 1. पक्की बात? हाँ, ये हर बात में हाँ हाँ नहीं करना होता मेरे साथ। सर शायद अपन अज्यूम भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू की 2 या 10 उसकी बेसिस Somebody, Umangana, you are saying something, but it is not very clear. No, sir, for median, we have to first arrange that in ascending order. हाँ जी, actually Then the we have case. to, and then we have to see whether the number of digits are odd or even. मीडियन मतलब ये नहीं कि हाँ बस मुंह उठा के पहुंचे और मिडिल वैल्यू उठा के ले गए। यही होगा एमसीक्यू में आपके साथ। आता हुआ क्वेश्चन गलत कराएंगे वो आपसे। मीडियन इज मिडिल वैल्यू, तो हाँ तो इसमें देखो मिडिल वैल्यू 1 होती है ना, तुमने मारा टिक और चल दिया आगे। गलत। Not like that middle value. Middle value in the sense, middle value in a sorted order. तो ये वैल्यूज ओरिजिनली किसी भी ऑर्डर में थी, अगर मैं इसको एक ऑर्डर में सॉर्ट करूं असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो अब बीच में कौन आएगा वो कहलाएगा मिडिल वैल्यू। इन दिस केस 3। अब ठीक है। ओके चलो, MCQ stuff for you people. Median of a set of values is essentially a value in that set of values. सेम क्वेश्चन जो मीन के बारे में कर रहा था। median of a set of values is essentially a value in that set of values. False. Yes, it is essential. False because again जो अभी कह रहा था, आता हुआ क्वेश्चन गलत कराएंगे आप लोगों से। अभी तक कितनी वैल्यूज थी हैं? 5। तो मिडिल वैल्यू इज 1 2 3, थर्ड वैल्यू इज मिडिल। What if this set of values has 6 elements? हाँ जी, अब कौन है मिडिल वैल्यू? कौन है मिडिल वैल्यू? 3 के 4? हाँ समझ गए जो नेहा कह रही है। Now there are, I have 2 middle values now. So the final median would be the mean of these 2 middle values. ये जो 2 middle value आई हैं, इन दोनों का mean calculate करेंगे हम, और that will become the final median. हाँ जी, कितना हुआ एवरेज? 3.5। 3.5. तो मीन इज 3.5। अब एक बार देख के बताना 3.5 कहीं आ रहा है इसमें सेट ऑफ वैल्यूज में? 3.5 is nowhere there and still it is median. So yes, not necessarily. ठीक है जी, याद रहेगा ना? ये नाम रोशन तो नहीं कर दोगे मेरा? Median of a set of values is essentially a value in that set of values. False. Not necessarily. Not always. ओके चलो, ये भी समझा। तो 3.5 आ गया इस केस में, लिख देते हैं यहाँ पे 3.5। यहाँ पर 3 था, in this case that is 3.5। एक बात बता सकते हैं कोई आप में से? मैंने बोला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या हो सकते हैं? मीन चलो हो सकता है, माना मीन की बात समझ जाती है। अरिथमेटिक एवरेज है कि हाँ यार इतने लोग हैं, सबकी मैंने हाइट ऐड कर ली और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल,
तो ठीक है, एक अरिथमेटिक एवरेज निकल गया, सेंट्रल टेंडेंसी लगता भी है। मीडियन ये कैसे, ये किस हिसाब से हुआ सेंट्रल टेंडेंसी? इसे हम क्यों कह रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी है? हाँ, तो उससे क्या हुआ कर? सो ये जो वैल्यू है जो मीडियन के थ्रू मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, मतलब जैसे 3.5 है वो मिडिल वैल्यू है पूरे नंबर जो भी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मीडियन इज सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस, अगर मैं कह रहा हूँ 3 इज मीडियन हेयर, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, आधे लोग इससे कम वाले हैं और इतने ही लोग इससे ज्यादा वाले हैं। इन दैट सेंस दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। मिडिल वैल्यू है ना, तो इतने ही लोग इससे आगे हैं, इतने ही लोग इससे पीछे हैं। इन दैट सेंस दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेम गोज फॉर हेयर 3.5। 3.5 अगर मीडियन आया है, so it has divided your data into 50 percentile and 50 percentile। आधे लोग इससे ज्यादा वाले हैं, आधे लोग इससे कम वाले हैं। So in that sense this is central tendency। ठीक है, ये सब कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, आई डोंट नो, मैंने बताया है कभी आपको इंटरव्यूज में? पता है समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन होंगे व्हेन योर इंटरव्यू, यू नो, sometimes they just want to make you nervous, sometimes they will just want to fool around, sometimes these kind of things happen, you know। सपोज ऐसा क्वेश्चन हो जाए, पता प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हें पता सब है, अल्फाज नहीं मिलेंगे गालिब कि बोलूं कैसे। आई होप समझ आ रही है बात। ऐसा तो हुआ है ना कॉलेज में वाइवा में, जिन्होंने दिया होगा, कॉन्सेप्ट मालूम है, Yes, थ्योरी sir. मालूम है, एक्सपेरिमेंट मालूम है, बोलते नहीं बंदा कि इसे हाउ टू रोप these words together into a sensible answer। You know, it happened to me in very early days। In very early days of my career, I was appearing at an interview, and the interviewer, and it was just going fine. It was all going fine, and suddenly one of the interviewers asked me that, okay, your specialization is BFS, banking. So, okay, tell me, Chavan, what is a bank? And you know, I was speechless, wordless, languageless. Who doesn't know what is a bank? Everybody knows what is a bank, but how to put that into 3-4 sentences? It was nowhere there. So that became a benchmark. That became, you know, an eye opener for me, and it is always with me. You know, when you stumble upon situations like this, you always try to take care of these kind of things. So I don't want you people to get into that kind of trouble. So that is why I keep explaining how to put that into a proper answer। चलो चलते हैं आगे। So okay, much said about mean, median. What else? Can there be anything else? Mode. There is another central tendency, and we call it mode। What is mode in a set of values? Frequency. Number of occurrences of the value. Highest number of occurrence of the
It is the highest frequency value. जिस वैल्यू की frequency सबसे ज़्यादा हो रही है in a set of values, that would be called mode of that set of values. So we are just seeing a set of values here. What do you think is the mode here? One, sir. Whichever is being repeated highest number of times. So 1 is being repeated 4 times, 2 is twice, 3 is twice, and everybody else is single time. So it seems like mode happens to be 1 with frequency 4. Highest frequency value is 4. So 1 is repeated maximum number of times, so mode becomes 1. Same question once again. हमने कहा मोड इज ऑल्सो अ सेंट्रल टेंडेंसी. मोड को भी हाँ आपने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी है. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? विच इज रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. मीन हमें समझ आता है, अरिथमेटिक एवरेज. मीडियन हमने अभी अभी समझा कि ओके दिस डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उतने ही लोग इससे कम वाले हैं, उतने ही ऑब्जर्वेशन इससे ज्यादा वाले हैं. तो इन दैट सेंस दिस इज ऑल्सो single-handedly representing the data that this is the middle value. So median भी समझा. Mode is 1 just because it's highest frequency. Just have a look at the data once again, and do you think by any means 1 is representing this data? 1 is representative of this data by any in what sense we are calling it central tendency? Yes or no? Doesn't seem like it. No, sir. No, sir. 1 तो मुझे किसी भी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा कि ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हम इसको क्यों कह रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है? जस्ट बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी. डेटा का सर अमाउंट बहुत अभी लो है, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी की तरह वर्क नहीं करेंगे. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 1 की ज़्यादा होती तो शायद मोड और सेंट्रल टेंडेंसी की तरह वर्क कर सकते हैं. नहीं, फ्रीक्वेंसी तो 1 की ऑलरेडी ज्यादा है, वो तो देख ही रहे हो. So because most of the number having a same value are high. हाँ, तो उससे क्या हुआ? हमने सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला इसको? So because most of the numbers represent 1. Ali, you are this close. You are very close. You are this close. Just imagine me doing the, that gesture with my thumb and index finger. You are very close. This close. So mode is because it's like a value which is favored the most. Like if 1 is repeating most number of times, so it's like it is a demand. Like more people are looking forward for this quantity. Like more people are choosing this one. So for example, if we have to take a class of students, and if we talk about their colors, most of the Indians are dark, sir. So imagine. So we'll take the colors of their. No. Just drop this example right here, right now. You will run into deep trouble, gentlemen. What are you saying? Racist person. Okay. I'll talk about this. I hope you are getting the idea right. Understand this. Yes. हम इस मोड को बोल रहे हैं that this is also a central tendency in some way. Taking an example of your class, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था. If somebody asks me height of this class, PGA 14, and I don't want to say that this is, हाँ मैं बोल सकता हूँ average इतना है, seems good. मैं median भी बोल सकता हूँ that somebody is of this height, all others are, half of the people are taller than this person and half other people are shorter than this person. Makes sense. Mode को हम central tendency बोल रहे हैं because if chosen at random, which is the highest probable value which will be chosen. In that sense, mode is also central tendency. Getting my point?
if I choose one value at random from this set of values, who is having the highest probability of getting chosen? Yes or no? One, sir. One, because it is highest frequent. Now coming to your example, suppose most of the students here, just for example, I'm taking a random value just for the sake of example. Suppose most of the students of this batch are 5 feet 6 inches tall. अब कोई मेरे से पूछ रहा है कि यार आपके बैच की हाइट कितनी कितनी है? थिंक अबाउट इट. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50% उससे ज्यादा है या कम है. मैं ये कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट 5 feet 6 inches tall exactly. तो इफ चोजन एट रैंडम, मैं कह रहा हूँ कि यार एक को बुला के देख लेते हैं. What is the highest probability which I will choose? What is the highest probability observation which I will choose, which I may choose? Getting the point? Obviously mode. 5 feet 6 inches tall person एक निकल के बाहर आएगा अगर मैं रैंडमली किसी को बुला लूँ. इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई ना इन आवर एग्जाम्पल जो मैं लेके चल रहा हूँ. Are you getting the idea, everybody? I'm taking very crude examples and very rough examples, and so that everybody, I hope everybody getting it. So in that sense, mode is also central tendency. Because क्या फर्क पड़ता है कौन मीड है, कौन मीन है, कौन मीडियन है? अगर ज्यादातर लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ ठीक है ये छोटे हों या बड़े हों, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है ना. So in that sense, they are represented. Okay. Clear? An old question strikes again. Mode of a set of values is essentially a value in that set of values. True or false? अरे हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं ना यहाँ पे. यहाँ कहीं मीन मीडियन तो कैलकुलेशन हो नहीं रही. जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी और हाईएस्ट होगी वही ना मोड बनेगा. जब फ्रीक्वेंसी होगी तो ऑब्वियसली will be present in that set of values. Yes, true. Sir, could you repeat the question? मैं कह रहा था कि mode of a set of values is always a value in that set of values. True or false? Yes, sir. True. एक चीज देखते हैं. Who is mode in this set of values? One and two both. बता सकते? हाँ. In this case, 1 and 2 both are modes. So another thing is mode can be more than one for a set of values. So such data sets are called multimodal, जिनमें एक से ज्यादा मोड होते हैं. So there can be unimodal values, एक ही मोड है. There can be bimodal, trimodal, quadmodal, or simply put, a general term, multimodal. So actually true. Mode will be essentially a set of essentially an element in the set of values.
हाँ, एक से ज्यादा हो सकते हैं। So this is measures of central tendency, or simply put, central tendencies, mean, median, and mode. I hope everybody got the gist. ये सब क्या क्या होते हैं, क्या मतलब हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? So, sir, your voice is on fast track. Voice is cracking. Yes. Yes, Is it sir. okay now? Is it okay now? All set, sir. All set. Okay. Okay. Very fine. Within descriptive analytics, there comes another measure. We saw measures of central tendency. There is something else also which is required. It is called measures of scatter or measures of dispersion. Dispersion, more sophisticated term for that is measures of dispersion. देखिए रीजन समझते हैं, बताता हूँ. सपोज मैं क्या देख रहा हूँ, these are some data points. मैं देख रहा हूँ सपोज वही स्टूडेंट का हाइट. तो दिस इज स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So this is student number 1, and on y-axis maybe I am representing say height. Y-axis which represents say heights of students. Students हैं या sports person हैं या जो भी हैं, तो on y-axis I am representing that. तो हाँ जी, कैसे आने वाले हैं? Just for example, स्टूडेंट नंबर 1 की इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की सर एक्स एक्सिस पे क्या रखा है सर आपने? दैट इज जस्ट स्टूडेंट नंबर गोइंग ऑन. स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4. तो हर एक स्टूडेंट की कुछ ना कुछ हाइट आ रही होगी ना, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की उतनी, किसी की इतनी. यस, समथिंग लाइक दैट. हमने क्या देखा था? सेंट्रल टेंडेंसी. इस डेटा की अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने लगूं तो क्या आने वाली है सेंट्रल टेंडेंसी? से आई कैलकुलेट मीन फॉर दीज पीपल. से आई कैलकुलेट मीन एंड मान के चलते हैं कहीं यहाँ पे आ गया मीन. फॉर एग्जाम्पल जस्ट मान के चल रहे हैं, दिस इज द मीन हाइट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, जितने भी ये मैंने लिए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान के. ठीक बात है जी. तो दिस बिकम्स व्हाट? मीन. मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एच बार कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल इसको. एच बार, बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को. तो इट इज दिस मच. नाउ जस्ट इमेजिन कल को कुछ नया डेटा आ जाए. अब कल को कुछ नया डेटा आ गया और कौन कौन आए हैं? कुछ नए स्टूडेंट्स आ गए. स्टूडेंट
9 तक थे, 10 तक थे, 11, 12, 13, 14 कुछ आ गए। जस्ट चेक दिस आउट, एक यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया और तीसरा यहाँ पर आया, कोई यहाँ पर आया, कोई यहाँ पर आया। कौन कौन आया नए लोग? ये वाला, ये कुछ नए लोग आए हैं। डेटा चेंज हो गया, यस और नो? पहले जो डेटा था उससे डेटा चेंज हो गया, लेकिन हाउएवर जस्ट बिकॉज ये नया डेटा कुछ कैसे कैसे आया है, जितना वो ऊपर गया उतना ही एक नीचे गया, जितना ये ऊपर आया है उतना एक नीचे आया है। मालूम है क्या होने वाला है? डिस्पाइट डेटा इज चेंज, दिस एवरेज इज स्टिल मोर और लेस सेम। Your central tendency has not changed despite data has changed. So the idea is central tendency is alone is not enough to describe the data. I need something else also. मेरे को कुछ और भी पता होना चाहिए so that I can describe this data. सही बात है, fair, make sense? हाँ जी, तो वो क्या होते हैं? वही जो आपने सुन रखे हैं, पर ये नहीं पता ये क्यों होते हैं। Measures of dispersion, नाम सुना है वेरिएंस? Yes, sir. नाम सुना है स्टैंडर्ड डेविएशन? ये क्या होते हैं? ये वही बताते हैं कि ये डेटा स्कैटर्ड कितना है मेरी सेंट्रल टेंडेंसी से। तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस कह रहा है यार मेरे को ये मीन वैल्यू तो ये आ गई एच बार जो पता है, और ये थी स्टूडेंट नंबर 1 की हाइट। मेरे को यही तो देखना है ये कितनी कितनी दूर है। यस और नो? तो हम क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस देख लो कितनी दूर है। ये जो डेटा पॉइंट था h1 हाइट नंबर 1, ये h बार से कितनी दूर है? इतनी दूर है। प्लस ऐसे ही दूसरे डेटा पॉइंट से देख लेते हैं, स्टूडेंट नंबर 2 की हाइट माइनस एवरेज हाइट, मीन हाइट, ये डिस्टेंस कितना होगा? प्लस एंड सो ऑन, सारे डेटा पॉइंट से देख लूंगा ऐसे। तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना कितना हुआ। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, मालूम है क्या प्रॉब्लम है? अगर बड़ा हुआ मीन से हाँ हाइट, वही है, डेटा पॉइंट कभी मीन से छोटा भी होगा, कभी मीन से बड़ा होगा। तो ये सब कुछ कभी ये जो डिस्टेंस मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मीन से कितने डिस्टेंस पे है, ये कभी पॉजिटिव आएगी कभी टर्म नेगेटिव आएगी। मैं कह रहा हूँ मुझे ये प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, और सारी टर्म को ऐसे ही स्क्वायर कर लो। एक टर्म और दिखा देता हूँ सो दैट क्लियर है। h3 माइनस एच बार एंड स्क्वायर, सारी ऐसी टर्म्स का स्क्वायर कर लो और फिर उनको ऐड कर लो, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ टोटल डेटा पॉइंट्स। यही होता है वेरिएंस। So could you repeat again, sir, like हाँ बिल्कुल variance? बिल्कुल 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 बिल्कुल, डोंट वरी, आराम से देखो, दोबारा देखो, बताता हूँ। मैं क्या जानना चाहता था
भाई अभी अभी मैंने ये जाना कि सिर्फ मीन से मैं बता नहीं सकता कि डेटा कैसा है, क्योंकि डेटा बहुत स्कैटर्ड है या डेटा स्कैटर्ड नहीं है। मीन तो इतना ही हो सकता है ना, देखा था ना अभी अभी हमने। पहले मेरा एक डेटा था, वो स्कैटर्ड नहीं था ज़्यादा, फिर भी उसका मीन आ रहा था एच बार। फिर हमने देखा कि वो डेटा अगर स्कैटर होता बहुत ज़्यादा तो भी उसका मीन एच बार ही आ रहा है, तो मेरे को खाली उससे तो काम नहीं चल रहा। तो हमने कहा कि ये भी देखना चाहिए कि डिस्पर्शन कितना है, मेरे डेटा पॉइंट्स इस मीन वैल्यू से कितना कितना दूर है। तो मैंने कहा ठीक है, दूर देखना, कैलकुलेट कर लेते हैं ना। सो दिस इज हाइट 1, जो पहला बंदा था तुम्हारा, दिस वन, इसकी हाइट मीन वैल्यू से कितनी दूर है, ये h1, ये पॉइंट नंबर 1 की। तो ये थी, इसका हमने डिस्टेंस निकाला। कैसे निकालोगे? h1 माइनस h बार, यही तो करोगे। फिर दूसरे बंदे के पास पहुंचे, h2 माइनस h बार, तीसरे का निकाला h3 माइनस h बार, और ऐसा करके सबका डिफरेंस निकाल लें। यहाँ तक बात क्लियर हुई? स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि ये डेटा पॉइंट कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं इस वाले को देखूं, दिस डेटा पॉइंट इज बिलो h बार, तो ये वाला टर्म जो है दिस वन, ये नेगेटिव आने वाला है अगर मैं स्क्वायर ना करूं तो। ये वाला डेटा पॉइंट देखूं तो ये ऊपर है h बार से, तो h3 माइनस h बार ये पॉजिटिव आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे प्लस माइनस का झगड़ा नहीं चाहिए, मेरे को साइन से लड़ना ही नहीं है। तो मैंने सबको स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस निकाला स्क्वायर, डिस्टेंस निकाला स्क्वायर, डिस्टेंस निकाला स्क्वायर। तो अब मेरे को एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना कि ये डेटा पॉइंट कितना दूर है मीन वैल्यू से। तो हर डेटा पॉइंट का ऐसे ही कैलकुलेट करके मैंने एक तरह से उस डिस्टेंस का स्क्वायर किया और लास्ट में डिवाइड बाय n कर दिया ताकि एवरेज निकल जाए। सर एक क्वेश्चन था। आप एक मिनट जस्ट उसका, यहाँ तक क्लियर है कहानी एवरीबॉडी? किसी ने तो कुछ पूछा था, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है अभी इतना? यहाँ तक आगे का हो सकता है, वो बात कर लेंगे। ओके, आई डोंट सी एनी क्वेश्चन कमिंग इन। गो अहेड उत्कर्ष प्लीज। आपने बताया कि वी सब्सट्रैक्ट देन वी टेक द स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। वी कैन यूज मॉड आल्सो, मॉड से भी हमें पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। तो हम स्क्वायर का ही क्यों यूज करते हैं? तो बस ये जानना है। यार दिस इज द वे वेरिएंस इज कैलकुलेटेड। इसका रीजन अभी इनफैक्ट चलो बात करूंगा अभी इसको। वेरिएंस का तो यही फार्मूला है, साइन इरेडिकेट करने के लिए स्क्वायर किया गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? So now coming to standard deviation. Standard deviation is nothing but the square root of variance. स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से कुछ नहीं होता। अरे कोई समझदार आदमी आया, वो क्या कहने लगा कि यार यहाँ पे ये तुमने सब कुछ स्क्वायर कर दिया था ना, तो ये सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी सी वैल्यू दिख रही है, मुझे डर लग रहा है, इसे स्क्वायर रूट ले लो। हर टर्म को आपने स्क्वायर करके ऐड किया था, तो उसे कहीं पे कंपनसेट करने के लिए फाइनली स्क्वायर रूट ले लो, बस इतना कहें। ठीक है जी, ये फॉर्मूले तो पढ़े थे। What exactly the difference between the variation and standard deviation? उसकी बात अभी बताता हूँ। अब मेरे ख्याल से जिन्होंने पढ़ रखा था ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद आ गया होगा देख करके।
उस समय शायद ये नहीं पता था कि ये फॉर्मूला क्यों होता है। ये पता तुमने कैसा लिखा हुआ देखा है? दिखा दे रहा हूँ। ये तुमने कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ देखा है। मीन ऐसा कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा कैलकुलेट होता है। ये आता कहाँ से है वही समझाने का कोशिश किया है। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि हाँ, मिस्टर गॉस का मन किया कि एक बहुत गंदा सा फॉर्मूला बनाता हूँ, दुखी करेगा बच्चों को जन्म जन्मांतर तक। ठीक है, ऐसी ऐसी इंटेंशन नहीं थी उनकी, बहुत अच्छा कुछ सोच रहे थे। हमें नहीं पता था ये क्यों होता है। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन आया था आई थिंक वासु का, जो मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ और कोई आपसे भी पूछ सकता है। मैं भी लाइक हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसे ठीक से लिख देता हूँ। कैसे दिखाऊं इसे? मैं भी थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या आया था? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। ये हम दो अलग अलग तरीके से बात क्यों करते हैं? इसे वेरिएंस कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड, अरे एक ही तो बात है मोरलेस। अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल के ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो कौन सा तीर मारा है हमने? अलग से एक नया नाम, वो भी इतना भारी भरकम, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या जरूरत थी ये डेफिनेशन और ये बना करके सिलेबस बढ़ाने की? Anybody got any idea? Well, I'm not expecting answers from those who didn't have stats in +2. But others, what about you? So variance tells us like how spread the data is, मतलब सर कितना ज्यादा वैरायटी है डाटा में, और सर वेरिएबिलिटी। और सर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है सर, वो हमें एक वैल्यू बताता है जो हमें बताता है कि वो जो हमारा डाटा निकल के आया है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो कितना पास है मीन के, जो मीन वैल्यू हमारी होती है। जब हम वेरिएंस से स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी
वो जितनी छोटी होगी यानी कि डाटा उतना पास है मीन के, और जितनी बड़ी होगी यानी कि डाटा उतना दूर है मीन से। हाँ तो वो तो वेरिएंस भी बता रहा है ना, मेरे कहने का सर पर मतलब वही तो था। वेरिएंस पर बट वेरिएंस जो हमें बता रहा है वो हमें ये बता रहा है कि डाटा हमारा कितना डिस्पर्स है। नहीं यार देखो, अगर मैं ये बात करूँ कि कौन ज़्यादा पास कौन ज़्यादा दूर, मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए ना कंपैरिजन के लिए। सर सपोज एक स्टैंडर्ड डेटा को डेविएशन, एक एवरेज डेविएशन हो गया सारे डेटा पॉइंट्स का सपोज मीन एक से। डेटा कुछ ऐसा है, देखो देख रहे हो, सपोज एक डेटा कुछ ऐसा है और दूसरा डेटा कैसा है, दूसरा डेटा कुछ ऐसा है। मीन इसका भी उतना है, उसका भी उतना है। यस और नो? मीन दोनों का वैसा सही आ रहा है। हाँ जी, वेरिएंस किसका ज़्यादा आने वाला है? If this is 1, this is 2. सेकंड वाले का देखते से ही पता चल रहा है वेरिएंस ज़्यादा आने वाला है, डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है उसके। तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा आने वाला है? स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ज़्यादा अलग थोड़ी बता देगा। अरे स्क्वायर रूट ही तो है एक वैल्यू का। सपोज इसका यहाँ पर इसका वेरिएंस आ जाए 400 मान लो, और इसका वेरिएंस आता है 100, बड़ी अच्छी बात है, चलो मान लो। तो वेरिएंस देख के मुझे पता लगा कौन सा डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो वो क्या बता देगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, सिग्मा इज 10, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को। इसके केस में व्हाट इज सिग्मा? 20। हाँ तो वही तो पता चला मुझे, और क्या पता चला? सर हमें इससे ये पता चला सर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है सर उसका डाटा मीन के उतना पास है, हाँ जितनी वैल्यू उतनी पास है सर, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसकी वैल्यू हाँ। ज्यादा डिस्पर्स है डाटा की। एक उसका बात बताओ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में ना करता कैलकुलेट, वेरिएंस ने भी तो वही बात बताई है भाई। अगर मुझे ना पता होता कि स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है जो स्क्वायर रूट होती है, मुझे बस वेरिएंस पता है कि वेरिएंस देख सकता हूँ मैं, तो मैंने वेरिएंस देखा इसका इतना है, इसका ये भी तो यही बता रहा है। वेरिएंस कम है यानी डेटा पॉइंट्स मीन के आसपास ही हैं, मीन से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। इन दिस केस कंपैरेटिवली मीन से कहीं ज़्यादा स्कैटर्ड। भाई दो चीज़ों में ही तो कंपेयर करोगे, वेरिएंस इसका कंपेयर्ड विद वेरिएंस उसका, तो तभी ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करोगे इसका कंपेयर्ड विद उसका, तभी तो पता चलेगा कौन सा कब कौन सा ज़्यादा। अगर अगर मैं आपसे इन अदर वर्ड्स में सिंपली बोलूं कि आपके ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25, अब क्या समझोगे इससे? अरे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं एज की बात कर रहा हूँ, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, मैं फीस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तब ना पता चलेगा कि ये 25 ठीक है नहीं है, सही है गलत है, जब किसी और बैच से कंपेयर करूंगा कि हाँ मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना है कुछ, जो भी आपको स्ट्रेस पड़ा है, मतलब मैंने करा है तो मैं बताऊंगा ही, अगर कोई बात है। इनफैक्ट सीक फॉर योरसेल्फ, कोशिश करो फाइंड आउट करने की, व्हाई वी आर डूइंग दिस सर्कस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कांट वी स्टिक टू वन। चलो आगे चलते हैं। चलो सर या somebody? या सर आपने अभी बताया था मीन के पास वाला, बताया था आपने आंसर की व्हाई डू वी रिक्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, कैन यू रिपीट? थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन और व्हाट एल्स? व्हाई डू वी रिक्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला? That अच्छा वो question. नहीं वो मिस नहीं हुआ है, वो मैंने बताया ही नहीं है, आई हैव लेफ्ट इट टू यू। Okay, ओके sir.
हाँ थोड़ा सा सोचो, हाँ हाँ मेहनत करो थोड़ी सी, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है सर, मुझे लगा आप बता दिया। चलो ठीक है। So this was case of when central tendency is mean, measure of dispersion is variance or specifically standard deviation. आप देखोगे अपना जो भी आप स्टेट्स में जो भी एक्सरसाइज करोगे, वी विल स्टिक टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वी विल रियरली टॉक अबाउट वेरिएंस एंड देखोगे आप आगे। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इट इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वो आप देखोगे जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ोगे आगे चलकर। अगर सेंट्रल टेंडेंसी मीन की जगह मैंने ले ही मीडियन ली है, तो वेरिएंस इज विसावी मीन। जब सेंट्रल टेंडेंसी मैं मीन कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन देखना मेक सेंस। इट इज कॉल्ड interquartile range, IQR, and it is when vis-a-vis जब सेंट्रल टेंडेंसी आप मीडियन कंसिडर कर रहे हो किसी डेटा में, तो उसमें आप डिस्पर्शन देखने के लिए इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी अगर मीन कंसिडर कर लिया है तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। सेंट्रल टेंडेंसी अगर मीडियन कंसिडर करके चल रहे हैं तो डिस्पर्शन कैसे देखेंगे, इंटरक्वार्टाइल। अब ये क्या होता है, suppose there is a set of values, say x1, x2, x3, x4, and so on, several, maybe 1,000, maybe a million, and finally there is something xn. And suppose they are arranged in ascending order, अभी मान के चलें, क्योंकि मीडियन की बात कर रहे हैं ना हम, तो थिंक अबाउट इट, इसका मीडियन कुछ तो होगा, इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन वुड बी xn/2 perhaps, yes or no? If there are total xn, तो मीडियन will be xn/2, बिल्कुल मिडिल में जो आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ xn, द मीडियन x। और हमने इसको बोला है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या हुआ था, हाँ जी, मीडियन कौन होता था, समझा था? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू, which brings me to another terminology that is called percentile. सुना ही ना, heard of percentile kind of thing? Yes, Something sir. percentile. मैंने जब इसको बोला मिडिल वैल्यू बोलते ही मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, आधे ऑब्जर्वेशंस इससे कम है और आधे ऑब्जर्वेशंस इससे ज्यादा है, एंड in this sense I am calling it 50th percentile. किसी ने कभी दिया है कैट मैट दैट, कुछ जानते हो? वो परसेंटाइल में बात करते हैं, वो परसेंटेज में बात नहीं करते। हर्ड ऑफ इट, सुना तो होगा अगर नहीं भी दिया है तो। वो परसेंट की जगह परसेंटाइल में क्यों बात करते हैं, एक तरह से वो ठीक ही करते हैं। देखो सपोज इन वैल्यूज को मानो आप दैट देयर आर, हाँ जी, कितने लोग कैट देते हैं हर साल, है कोई रफ नंबर आप लोगों के पास? आई मीन इन जनरल बिफोर दिस कोविड सिचुएशन, 2 लाख 3 लाख, या तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका
80 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। मतलब बहुत सारे। हाँ, 2 लाख का 1% बहुत सारे हो गए। रादर देन दे आर टॉकिंग इन के ये नंबर कितने आए, वो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं। रादर देन टॉकिंग इन के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, वो कह रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स ही कितने आए हैं। सपोज टॉपर के ही मार्क्स 100 में से 50 हैं, तो एक बात बताओ, बाकी सबके नंबर लिखने का क्या मतलब हुआ। वो कह रहे हैं कि टॉपर के 50 हैं तो बाकी सबके इससे नीचे ही हुए ना। बात बन रही है थोड़ी बहुत। तो उन्होंने क्या बोला, रादर देन के हम ये सबके नंबर देखते रहें, वो क्या कह रहे हैं, टॉपर के नंबर देखते हैं एंड दे आर कॉलिंग इट व्हाट, 100th परसेंटाइल। जैसे अभी मीडियन देखा था, मीडियन क्या होता है, 50th परसेंटाइल, आधे आगे आधे पीछे। तो थिंक अबाउट इट, मैक्स वैल्यू क्या हो गई, 100 परसेंटाइल नहीं हो गया। 100% ऑफ डेटा इज बिलो दिस वैल्यू, इससे पीछे ही है सारे, आगे कोई नहीं है। Yes or no? So this is the concept of percentile. Percentile is something different from percentage. Percentage means इतने में से इतने, वो नहीं है। हम कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन वाइज बताओ, इस ऑब्जर्वेशन वैल्यू से पीछे कितने आगे कितने। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू 100 परसेंटाइल हुई, तो मिनिमम वैल्यू कितने परसेंटाइल हुई, मिनिमम वैल्यू कितने परसेंटाइल हुई। इसके नीचे एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। कितने परसेंट डेटा इससे नीचे है, अरे एक कहाँ से हुआ, 0 नहीं हो गया, एक भी नहीं है। एक होता तो एक कहता, अब तो एक भी नहीं है। तो दिस इज 0th परसेंटाइल। ठीक है, ये परसेंटाइल का फंडा समझ आया। परसेंटाइल हम किस किस चीज को कह रहे हैं, जब परसेंटाइल बोल दें तो फिर क्वांटाइल्स की बात करूंगा। परसेंटाइल क्लियर, किस चीज को बोला है परसेंटाइल। टॉपर के मार्क्स हो सकता है 40 ही आए हों, लेकिन वही मैक्सिमम है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं है। तो दैट 40 हैज बिकम माई 100 परसेंटाइल नाउ। तो वही मेरी मैक्स वैल्यू है, वही 100 परसेंटाइल है। तो अब मैं परसेंटाइल में ही देखूंगा कि बाकी पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, कितने परसेंट कहाँ बैठ रहे हैं। ये फंडा क्लियर, अब आसान है केस। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, अब आसान हो जाता है। आसान हो जाता है इन द सेंस, देखो कोई तो वैल्यू ऐसी होगी, कोई तो वैल्यू ऐसी होगी, मैं स्क्वायर में डाल रहा हूँ अब क्योंकि बहुत हो गया सर्कल। कोई तो वैल्यू ऐसी होगी, कैसी होगी, विच विल बी 25th परसेंटाइल ना। कहीं तो 25th परसेंटाइल आएगा कि इससे पीछे 25% ऑफ डेटा पॉइंट्स इससे पीछे हैं और बाकी 75% ऑफ डेटा पॉइंट्स इससे आगे हैं। इसी को 25th परसेंटाइल भी बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कोई वैल्यू तो ऐसी होगी, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स पी, आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट। कहीं तो एक वैल्यू ऐसी आएगी, कैसी आएगी, विच इज एग्जैक्टली 76th परसेंटाइल। %75 of data points are behind this value and only 25% are ahead of this value. इसी को in other words मैं क्या कह रहा हूँ, this becomes my third quartile.
क्लियर? और IQR जिसकी हम बात कर रहे थे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR तो कैसा कैलकुलेट होता है किसी भी डेटा सेट में? IQR इज इक्वल टू, इट इज एज सिंपल एज दैट, Q3 minus Q1, so that is interquartile range. ये सब कहानी क्लियर है आपको? So Everybody clear Q3 over minus this? Q1, sir. हाँ जी, What comes, what is Q3, sir? Q3 is third quartile, 75th percentile. चलिए, okay, very fine. So this was Hello? something about descriptive stats. Descriptive stats, just nitty-gritty terminology. Hello. Yes, Neha, hi. Hi, Alok. So do you mean that like to get the value of Q3 and Q1, first we need to find out the median value, right? नहीं 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 Or नहीं नहीं, then don't how do take, we? देखो हाँ, इस आइडिया से बाहर रहना। देखो, Q3 minus Q1 does not actually mean median. इसका मतलब ये नहीं कि Q3 minus Q1 करोगे तो मीडियन आ जाएगा। Okay. हाँ, this is something Can you, tricky sir, with this. explain me for examples? हाँ, एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वो Then दिखा from सकता हूँ where पहले। do we get this Q3 value? I mean to say, like how will you get this Q3 value? I will show you. इससे घबरा मत जाना अभी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज ABC. आई एम यूजिंग R स्टूडियो। तो वो अभी आप लोगों को मतलब नहीं है इससे, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट Sir, इट। This is R Studio which I am using to show you something. so we can't see that. I can't see this. Sir, it is not on this. Is it now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए, बिकॉज डायरेक्ट फंक्शंस इसमें अवेलेबल है, एंड डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद Python kind of thing for now. Suppose I am creating a ABC kind of set of values and it happens to be this. Yeah, for example, just for example, and let's print this set of values. So these are the values in a set of values. अब ये है, ठीक है? If I check median of this set of values, it comes out to be 4, which is evident. वो देख के भी पता चल रहा है हमें, सही बात है? I am using some function. You don't have to worry about it कि ये फंक्शन कहाँ से आ गया और मेरे तो खट 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 करता जा रहा हूँ, बिकॉज वो अभी टाइम लगेगा। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये आपको डायरेक्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो रेयरली यू विल डू समथिंग मैनुअल। व्हेन आई रन अ समरी फंक्शन, वो मेरे को क्या बता रहा है? मिनिमम वैल्यू
मिनिमम यानी 0th परसेंटाइल, अभी बात हुई थी, एक तरह से 0th परसेंटाइल हुआ ना मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू यानी 100th परसेंटाइल, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम इज 1000 एंड इट इज शोइंग मी मीडियन कितना होता है, 4 होता है। इट इज शोइंग व्हाट इज द फर्स्ट क्वांटाइल, इट इज 2.5, व्हाट इज द थर्ड क्वांटाइल, it is 55, and as it is evident here, अगर मैं IQR कैलकुलेट करने लगूं अपने फॉर्मूला से, हाँ जी क्या होता था IQR? IQR is equal Q3 to minus Q1, Q3 minus Q3, that is 55 minus Q1, that is 2.5. तो देखो, I think it will become evident now. IQR is something way too different from median. देख रहे हो? तो Q3 minus Q1 का मतलब ये नहीं है कि वो मीडियन हो जाएगा। मीडियन इज जस्ट दैट कि इससे आगे इतने डेटा पॉइंट हैं, इससे पीछे इतने पॉइंट हैं, उन पॉइंट की वैल्यू का है, मीडियन को उनसे कभी मतलब नहीं होता। जब समझ रहे हो, मीडियन के हिसाब से उसे बस बीच में बैठने में इंटरेस्ट है, यहाँ बीच में, उसकी तरफ से ये 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उसे बस बीच में आना होता है। Sir, then what does exactly IQR mean? IQR is interquartile range, it is measure of scatter के इस डेटा पॉइंट 4 से आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है। अच्छा, मतलब जो मीडियन की लाइन है उससे कितना ऊपर नीचे है, वो हाँ, वो देखने के लिए IQR यूज करते हैं। इफ आई एम चूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी एज मीडियन, तो IQR becomes my measure of dispersion। ये देख, then sir 52.5 is IQR. हाँ तो सर 52.5 एग्जैक्टली मतलब है क्या, ऊपर नीचे क्या मतलब, IQR ही बोलेंगे इसको? हाँ यार IQR है। अब तुम बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन 100 आ गया, वो क्या मतलब हुआ इस बात का? दैट इज जस्ट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज ऑलवेज डिस्पर्शन तब काम करेगा जब हम कंपेयर कर रहे होंगे किसी चीज से। तुम बोलोगे इसका IQR तो 52 है, मैं क्या समझू इससे? हाँ सही बात है, कुछ नहीं समझेगा इससे। जब एक दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज होगा और मैं वहां देखूंगा कि उसका IQR तो 100 है, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसका डिस्पर्शन कम था, उसका ज्यादा है। So these kind of thing are used in comparison. हाँ, kind of. So these are relative phenomena. Any other question? Anybody, any other question? तो थोड़ा सा आप लोगों ने स्टैट्स देखा, आई थिंक कुछ कुछ कंफर्ट आया होगा जिन लोगों का बिल्कुल भी हाथ पल्ले नहीं चल रहा था अभी तक, तो इतना स्टैट्स आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके ऊपर कहानी कही जा सकती है। जिन जिन लोगों का कहना था कि बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, एंड in your batch launch also some people were very anxious and skeptical about के हमारा क्या होगा। हाँ जी, अब हो जाएगा। चलो ठीक है। Okay, let's do one thing, let's break for a while and then I will move on to a use case. Just starting, sir. Starting? समझा नहीं? That is just a starting course, so it's just a starting. We can't say. अच्छा, okay. Okay. Maybe I'll be able to comfort you in another by the end of today's session. Maybe something will have come up. Okay. Okay, let's do one thing. Let's break for a while and yeah, it's some 2:30 now. What, Neha? How long do you want it to be? Okay, let's do it.
Okay, that'll do. We resume at 2:45. Just please be back in time, everybody. Acha, Vasu, you want for 20 minutes? Somebody told me to tell you. Okay, maybe 20 minutes, but please be back in time. Maybe you can have a snack. Maybe you can grab a coffee. Just, but please be back in time, okay? Maybe I'll drop off from meeting so that recording doesn't bulk up. But you should please be back on the link by 2:50. So that's my clock. It is at 2:30 now. So 20 minutes from now, broadly. Well guys, see you there then.